આજની આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રવક્તા અને પૂર્વ સાંસદ જુજારુ નેતા ડોક્ટર અજયકુમાર આપણી વચ્ચે છે। સાથે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના સન્માનીય પ્રમુખ શ્રી જગદીશભાઈ ઠાકોર પણ આપણી સાથે વાતચીત કરશે। વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના જનરલ ડોક્ટર સીજે ચાવડાજી, અમારા કોંગ્રેસ પક્ષના કાર્યકારી પ્રમુખ ડોક્ટર ઇન્દ્રજીતસિંહ ગોહિલ, મારા સાથી ભાઈ શ્રી હિરેનભાઈ કેયુરભાઈ ઉપસ્થિત છે। હું પ્રથમ વિનંતી કરું માનનીય જગદીશભાઈને जो આજની વિશેષ પત્રકાર વિશે વાત કરે, ત્યારબાદ આ પત્રકાર પરિષદને ડોક્ટર અજયકુમાર સંબોધન કરશે। સન્માનીય જગદીશભાઈ। આજની પ્રેસ વાર્તામાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રવક્તા, અમારા જુઝારુ લીડર, એમપી તરીકે એમની સાથે ખૂબ કામ કરવાનો અવસર મળ્યો છે અને અમારા પરમ મિત્ર અજયકુમારજી, વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના દંડક માન્ય ડોક્ટર સીજે ચાવડા સાહેબ, ભાઈ મનીષભાઈ, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યકારી પ્રમુખ ઇન્દ્ર વિજયસિંહજી, સાથી પત્રકાર ભાઈઓ અને બહેનો, આજની પ્રેસ વાર્તામાં ગુજરાતમાં આવતી ચૂંટણીઓમાં જે ફેક્ટર આવી રહ્યા છે તેના અંગે અજયકુમારજી પણ વાત કરશે અને હું પણ વાત કરીશ। આમ આદમી પાર્ટી એ ગુજરાતમાં ચૂંટણી લડી રહી છે અને ચૂંટણી લડી રહી છે ત્યારે એના મુદ્દાઓ, એનું પ્લાનિંગ, એના નક્કી કરેલા સ્લોટ ઉપર જે કામ કરી રહી છે એને પર્દાફાશ કરવો પણ જરૂરી છે। જે રીતે પંજાબમાં એક કાર્યક્રમમાં એક રિક્ષા ડ્રાઈવર ઉભો થાય છે ને જે શબ્દો અમદાવાદમાં કે ગુજરાતમાં એક રિક્ષા ડ્રાઈવર ઉભો થાય છે ને એ વખતના જે શબ્દો રિક્ષા ડ્રાઈવરના અને એ વખતના જે શબ્દો કેજરીવાલના હતા એ બંને સોશિયલ મીડિયામાં ફરી રહ્યા છે। એનો અર્થ એ છે કે જે કંઈ મીડિયામાં આવે છે અથવા મીડિયામાં આવવા માટેની વ્યવસ્થા કરવાની થાય તે બધું સુનિયોજિત આયોજન કરે છે અને પછી દેખાવ એવો કરે છે કે રિક્ષાવાળાએ મને આમંત્રણ આપ્યું ને હું જમવા ગયો। આટલા વર્ષોમાં મેં રિક્ષાનો યુનિફોર્મ ક્યાંય જોયો નથી। યુનિફોર્મ સાથે સવાલ જવાબ અને જમવા જવાનું થાય છે અને જ્યારે માન્ય કેજરીવાલ અહીં આવી રહ્યા છે ત્યારે સવાલ પણ ઉભા થાય છે કે પંજાબની સરકાર બન્યા પછી રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીના છબી તમે ત્યાં પંજાબમાં હટાવી છે। જે રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી આ દેશને આઝાદ કરાવ્યો, રાષ્ટ્રપિતા તરીકેનો વિરોધ છે। સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાં ગાંધી વિચારધારા આજે જીવંત છે, એના ઉપર દુનિયા ચાલી રહી છે। એ મહાત્મા ગાંધીની છબી, તસવીરો તમે પંજાબમાં હટાવીને ગુજરાતમાં ચૂંટણી લડીને શું મેસેજ આપવા માંગો છો? સવાલ આ પણ ઉભા થાય છે। અજયજી, ભાજપા અને આમ આદમી પાર્ટીમાં સામ્યતા છે। અહીંયા મહાત્મા ગાંધીના ચશ્મા ક્યાંક તસવીરમાં મુકાય છે। મહાત્મા મંદિરનું નામ આપીને કરોડોના ખર્ચે બિલ્ડિંગો બને છે, મહાત્મા મંદિર નામ અપાય છે, પણ મહાત્મા ગાંધીનું સ્ટેચ્યુ, મહાત્મા ગાંધીનું પૂતળું, મહાત્મા ગાંધીના વિચારોને ખતમ કરવાની જે રાજનીતિ ભારતીય જનતા પાર્ટીની છે એ જ રાજનીતિ આમ આદમી પાર્ટીની વિચારધારામાં છે। એ જ વિચારધારા મહાત્મા ગાંધીની ખતમ કરવાની વિચારધારા કેજરીવાલ પણ લઈને આવ્યા છે અને ગુજરાતમાં તમે જાહેરાતો કરો છો, એ જાહેરાતો દિલ્હીમાં તમે
જે જાહેરાતો થાય છે એની વિસંગતતા કેમ છે એના પણ કેટલાક સવાલો ઊભા થાય છે અને એટલા જ માટે ગાંધી વિચારને જે ખતમ કરી રહ્યા છે, ગાંધી વિચારધારાને ખતમ કરી રહ્યા છે, ગાંધીજીના ફોટાને જે માનતા નથી, પોતાની સત્તા આવ્યા પછી ગાંધીજીની તસવીર જે દૂર કરે છે, એ ગાંધી વિચારધારાના વિરોધીઓ એ બીજેપીની બી ટીમ બનીને કોંગ્રેસના વોટ કેમ તોડવા, કોંગ્રેસને નુકસાન કેમ કરવું, એ બંનેની મિલી ભગત થઈ અને ગુજરાતની ચૂંટણીઓમાં આમ આદમી પાર્ટીએ ઝંપલાવ્યું છે, બહુ સ્પષ્ટ દેખાય છે. અને આ બાબતે ખૂબ વિગતથી અજય કુમારજી પણ આપણી સાથે વાત કરશે. માન્ય અજય કુમારજીને વિનંતી કરું કે આપ પત્રકાર મિત્રોની સાથે વાર્તાલાપ કરો. માન્ય અજય કુમાર. सर प्लीज 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 सर प्लीज. तो आप यहाँ आइए सर, यहाँ आइए. कुर्सी आ गया आप बैठे. पहले पहले नहीं मैं बैठता. अरे सर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पीछे करो. बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी. पहले तो आप सबको राधे राधे, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार. जोहार क्योंकि हम झारखंड से हैं तो वहाँ पर हम सब लोग को हमारा ग्रीटिंग करने का जोहार. आदरणीय जगदीश जी, सीजे चावला जी, हमारे भाई इंद्र सिंह जी, डॉक्टर जोशी साहब और हिरेन जी और उपस्थित सभी गुजरात के नामी पत्रकार. देखिए, जगदीश जी ने आपको काफी विस्तार में बताया. मैं आपको याद होगा एक हिंदी पिक्चर थी जय हो, सलमान खान का. तो उस पिक्चर और आम आदमी पार्टी का जो है उनका टैगलाइन होना यही आवश्यक, उनका टैगलाइन यही होना चाहिए, अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता. अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता, ये आम आदमी पार्टी का जो नारा जो है ऑफिशियल नारा होना चाहिए. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं 4 प्रमुख चीज पर आपको बताना चाहूंगा. एक प्रमुख चीज है कि किस तरह से अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी, अरविंद एंड एक्टर्स पार्टी और अरविंद ऐश आराम पार्टी किस तरह से दिल्ली में जनता को बेवकूफ बना रहा है. पंजाब में तो बनाया ही है. अब उस पैसे से लेकर के गुजरात में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए बड़ा मोदी भी अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं. ये छोटा मोदी नहीं है, ये बड़ा मोदी, क्योंकि झूठ बोलने में ये सुपर पीएचडी है. अब अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी की स्थिति देखिए कि अभी तक 1000 करोड़ के आसपास अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी ने खर्च किया है. 1000 करोड़ अपने 8 साल में दिल्ली में और बाकी जगह प्रचार करने में 1000 करोड़. अगर आप इस आंकड़े को देख लीजिएगा कि जब शीला दीक्षित ने शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो उस वक्त दिल्ली सरकार ने उस लास्ट ईयर में 11 करोड़ खर्च किए थे. अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी ने 2015 में 81 करोड़, 2016 में 90 करोड़, 17-18 में 120 करोड़, 18-19 में क्योंकि कोविड ये थोड़ा सा कम पड़ गया था तो उन्होंने 50 करोड़ के आसपास खर्च किया. फिर 19-20 में 200 करोड़, 20-21 में 300 करोड़ और 21-22 में करीब 500 करोड़ के आसपास, 488 जो आंकड़े. 2 महीने नहीं हुए पंजाब में, लेकिन पंजाब की सरकार ने 36 करोड़ रुपए जो है खर्च किए एडवर्टाइजमेंट में गुजरात में. आप देख लीजिएगा कि लोकतंत्र को खोखला करने का यही है कि इसको ये लूटेंगे. 36 करोड़ खर्च किया है पंजाब सरकार ने, पंजाब के अखबार में नहीं,
मैं सिर्फ 36 को गुजरात के जो है अलग अलग संस्थान है, आईटी, इनके आईटी सेल, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, सब चीज। पंजाब की सरकार, क्योंकि इनका मॉडल है कि ये गुजरात मॉडल जैसे दिल्ली मॉडल को जो है एक प्रचार करा दो, क्योंकि इनको मालूम है कि 99% गुजरात की जनता या देश की जनता तो दिल्ली नहीं जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? जैसे गुजरात मॉडल देश भर में आपने मशहूर, ये लोग मोदी जी ने मशहूर कराया, कितने लोग देश भर में आते हैं? 1% आते होंगे गुजरात। 130 करोड़ में से 13 करोड़ से ज्यादा तो नहीं आएंगे ना। तो ये उसी तरह का है, ये खोखला फर्जी मॉडल है। ये अरविंद एडवर्टाइजमेंट वाली पार्टी जो है इसी पर जो पूरी तरह से जनता को बेवकूफ बना करके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और एडवर्टाइजमेंट की शर्म कोई चीज नहीं है, तनिक से भी लोक लाज नहीं है। इन्होंने स्कॉलरशिप के लिए, देख लीजिए कितने खराब लोग हैं कि स्कॉलरशिप के लिए 19 करोड़ खर्च किए एडवर्टाइजमेंट। स्कॉलरशिप दिए 20 लाख का, सीरियसली 19 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट और 20 लाख का एक्चुअल स्कॉलरशिप। स्टबल डीकंपोजर का जो एडवर्टाइजमेंट है आरटीआई के मुताबिक 20 करोड़ के आसपास एडवर्टाइजमेंट कि हम दिल्ली को जो पर्यावरण को जो है साफ कर लेंगे, दिल्ली का जो हवा को गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। 20 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट था स्टबल डीकंपोजर के लिए। सुन लीजिए, खर्च हुए 5 लाख डीकंपोजर खरीदने के लिए और जमीन पर धरातल में लाने के लिए सिर्फ 5 लाख। एडवर्टाइजमेंट कितने का बताइए? 20 करोड़। इसका मतलब है कि हम स्वास्थ्य पर 2000 करोड़ खर्च करेंगे और 5 करोड़ खर्च करेंगे एक हॉस्पिटल पर। बोलेंगे स्वास्थ्य अच्छा हो गया पंजाब में। मैं इसलिए इतने जो लंबा चौड़ा इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि देखिए इस देश की जनता और गुजरात के खासतौर पर जनता को इन ये ढोंगी, फर्जी, कट्टर बेईमान लोग को पहचानी है। ये लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं। यार इतना भी सर्टिफिकेट जो है देख लीजिए, मैं बताऊंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको मालूम होगा कि कितने कट्टर बेईमान है। तो एडवर्टाइजमेंट जीवी, करेक्ट? पहले तो एडवर्टाइजमेंट जीवी है, मैंने आपको बता दिया कितने खर्च किए थे। अब बात आती है करप्शन के बारे में, कट्टर भ्रष्टाचारी के बारे में 2 लाइन थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय बहुत सारे पैसे लोग ने दिए थे। अन्ना हजारे साहब ने कहा कि उस पैसे का क्या हुआ? करप्शन वहीं से शुरू होता है। गांधी जी के जो है फोटो लगा करके, आप गांधी जी का फोटो जैसे जगदीश भाई ने कहा कि हटा दिया, वो दूसरी बात है। गांधी जी के नाम पर पूरी तरह से जो है हमारे भाजपा के पूरी तरह से समर्थन था उसमें। भाजपा पहले इनको जो है पाल रहे थे बढ़िया से। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पैसा था वो क्या हो गया? ये आरोप, सीधे आरोप अन्ना हजारे ने लगाया। जहां तक करप्शन है, इनका मॉडल देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल हैज फाउंड आउट, ये अरविंद अल्कोहल पार्टी भी है। और मैं समझाना पड़ेगा, तो बहुत सारे नाम उसमें से आप कुछ भी चुन लीजिए। एडवर्टाइजमेंट पार्टी है, ऐशाराम है, अल्कोहल पार्टी है। अल्कोहल पार्टी क्यों है बताइए, बताता हूं। पहले दिल्ली में 60% दुकान सरकार के पास रहती थी, 40% प्राइवेट पर। पहला, इसने 100% प्राइवेट कर दिया। दूसरा, डिपॉजिट जो था, छोटे छोटे दुकानदार 25 लाख में डिपॉजिट कर, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उनको 25 लाख की डिपॉजिट देना पड़ता था। तो छोटे छोटे व्यापारी लोग जो है दे पाते थे। ये मोदी जी ने सिमिलरिटी देख लीजिए, बड़े व्यापारी। अब 5 करोड़ कर दिए, तो बड़े खिलाड़ी आ सकते सिर्फ डिपॉजिट में, अर्नेस्ट मनी में सिर्फ 5 करोड़। 25 लाख की जगह पर 5 करोड़, मोदी मॉडल, बड़े उद्योगपति। उसके बाद देख लीजिए, ये असली खेल है। असली खेल क्या था कि पहले हर 750 ml बोतल पर दिल्ली में 223 रुपए एक्साइज और 100 रुपए वैल्यू एडेड टैक्स मिलता था। फिर से रिपीट करता हूं, 223 रुपीज एक्साइज, 100 रुपीज वैल्यू एडेड टैक्स। कट्टर बेईमान वाली पार्टी ने क्या किया? एक्साइज को 1 रुपए 88 पैसे कर दिया। भाई साहब, 223 रुपए से 1 रुपए 88 पैसे।
और वैल्यू एडेड टैक्स को 1 रुपी 90 पैसे, जो 100 रुपए था। तो सरकार तो जिस मुख्यमंत्री जब कुर्सी पर बैठते तो उनका पहला काम क्या है कि प्रदेश का राजस्व बचाना। ये तो डकैती करा दिया। अपने घर में डकैती कराने वाले व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? अपने स्टेट को खोखला करने वालों को क्या बोलोगे? दिल्ली में इन्होंने अपने स्टेट के बजट, और आप अब ऐड कर दो 300 रुपीज, 320 रुपीज प्रॉफिट, मुनाफा प्राइवेट कंपनी को दिल्ली पर बॉटल। ठीक है, अगर वो स्कॉच होता तो 3000 रुपए, तो ये तो सस्ता वाला देसी शराब के बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, सस्ता वाला। तो अपने इंपॉर्टेंट इसलिए है कि समझ लीजिए कितने बड़े चोर हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, तो 300 रुपए तो हर बोतल पर चोरी कर रहे हो। करोड़ों बोतल बिकती है दिल्ली में। तो अगर 10 करोड़ बोतल बिकती है दिल्ली में, तो 300 into 10, 3000 करोड़। कट्टर बेईमान। दिस इज द प्ले। दिस इज वाई अरविंद केजरीवाल ने लिकर पॉलिसी वापस लिया। लुक एट द मनी। आजादी के बाद इस तरह का दुसाहस के साथ किसी ने चोरी नहीं की। लोग चोरी बहुत लोगों ने किया, लेकिन इस तरह का तो किसी ने नहीं किया। अब जब दारू से पेट नहीं भरा तो ये बस पर आ गए। अब 1000 बस जो है दिल्ली में डीटीसी लो फ्लोर बसेस खरीदी गई। खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया था, उसका भी अलग कहानी मैं बता रहा। उसमें 2 साल आपको फ्री एएमसी है, जो कंपनी दे रही है गाड़ी, उसमें आपको मेंटेनेंस उस कंपनी की 2 साल। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने महानता दिखाते हुए डकैती दिल्ली के राजस्व पर करते हुए 30 रुपए पर किलोमीटर उस कंपनी को दे दिया, अलग से, अलग कंपनी को मेंटेनेंस के लिए, गाड़ी वाले को नहीं। एक अलग कंपनी को एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 30 रुपीज पर किलोमीटर, हजारों करोड़ का दान ली फिर से। जबकि 2 साल में तो गाड़ी का तो मेंटेनेंस फ्री था। आप समझ रखिए, उस पॉलिसी को भी वापस ले लिया। तो ये करप्ट टू द बोन। क्योंकि इनकम टैक्स के पदाधिकारी हैं तो थोड़ा दिमाग ज्यादा चलता है। सबसे खतरनाक जो है ना, मैं तो आईपीएस ऑफिसर रह चुका हूं, सबसे खतरनाक सरकारी अफसर जो भ्रष्ट हो जाता है, उसको सब तरीके मालूम होता है। तो अरविंद केजरीवाल इज अ एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट करप्ट पॉलिटिकल पीपल। नेता लोग अपनी जगह भी है, तो यहाँ क्योंकि ये देखा है इनकम टैक्स में कि कैसे करना है। ये सब सचमुच में इनोवेटिव करप्शन है। पंजाब में इनकी मंत्री अभी जैसे मंत्री बना था तो उसने फिक्स कर लिया 1%। विजय सिंगला जी, तो उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, तो ये तो आपको तो जानकारी है। एक व्यक्ति है विजय नायर, और इसका नाम नोट कर लीजिए। वो गुजरात नहीं आया है, क्योंकि वो विदेश में कहीं पर विदेश में छिपे हुए हैं। विजय नायर अरविंद केजरीवाल का दाहिने हाथ। बुरा मत मानिए, आप अरविंद केजरीवाल से जरूर पूछिए, वेयर इज विजय नायर। विजय नायर के ऊपर लड़कियां का छेड़खानी के अनेक आरोप हैं। ये इनके मेन मीडिया सलाहकार बने, मेन ब्रोकर बने, मेन लिकर पॉलिसी बनाने वाले बने, मेन डीटीसी बस वाले पॉलिसी बने, और ये और विजय नायर दोनों ही बात करते हैं, बस और कोई नहीं होता। सो अरविंद केजरीवाल शुड आंसर टू यू, वेयर इज विजय नायर। एंड अरविंद केजरीवाल को पहले से मालूम था कि इन्होंने लड़कियां की विजय नायर ने बच्चियों का, लड़कियों का छेड़खानी किया था। उसके बावजूद इसने अपने जो सबसे इनर सर्कल में रखा। ही न्यू इट। ये पुरानी केस, बहुत पुराना केस है। तो आप बताइए कि एक आदमी भगत सिंह का फोटो लगाता है पीछे, भाषण देता है कि ठीक फोटो है कि नहीं। एक मीटू वाले आदमी जो है बगल में, उसके पहले से ही मालूम है, लेकिन सब पाप माफ है। अब थोड़ा सा संक्षेप में उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बोलते हैं ना कि दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन। अगर दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन इतना बढ़िया था, जब से शीला दीक्षित जी के समय
आप बताइएगा कि शीला दीक्षित जी के समय और अब में, पहले शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो सिर्फ 30% लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे दिल्ली में, ओनली 30%। अब 40% हो गया। दिल्ली मॉडल ये है, गुजरात मॉडल का बराबर है। यहां पर भी टीचर को आवरली लेबर, डेली वेज लेबर में कर दिया ना, आवरली रेट हो गया ना गुजरात में। मोदी जी और अमित शाह जी आवरली रेट पर है ना, वहां पर भी बड़ा मोदी जो है उसको अडॉप्ट कर दिया है। टीचर सब अडॉप्ट पर है दिल्ली में। गुजरात दिल्ली मॉडल बराबर है। आप देख लेंगे कि गुजरात और दिल्ली मॉडल सेम है। प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है वो तो ठीक है। अरविंद केजरीवाल से पूछेगा कि आपने कहा था कि आप 500 मॉडल स्कूल बनाएंगे, असली में 63 बने, 63, 8 साल में। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम 6000 क्लासरूम बनाएंगे, बनाया 4000, वो ठीक है। पैसे दिए 7000 क्लासरूम का। सुन लीजिए फिर से, 6000 क्लासरूम बनाने वाले थे, सिर्फ बनाए 4000, ठीक है मैं समझ सकता हूं। लेकिन पैसे देखिए, ये कितने दानवीर है यार। पूरा प्रदेश का राजस्व को, पब्लिक को खोल देते हैं अपने दोस्त लोग के लिए। 7000 का जो है क्लासरूम का पैसे दे दिया, बनाए सिर्फ 4000। मानना पड़ेगा ना। दारू में जो है पूरा राजस्व को खाली करा दिया अपने दारू वाले दोस्त के लिए, फिर एएमसी दे दिया बस के लिए, राजस्व खत्म कर दिया। अब इन्होंने क्लासरूम भी नहीं छोड़ा, 4000 बनाया लेकिन 7000 का पैसे दे दिए। कितने दानवीर है वो, क्या जनरस। 80% ऑफ स्कूल्स, 80% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है कहीं। दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल। यार 80% प्रिंसिपल नहीं है। 824 स्कूल्स, 1027 में से 824 स्कूल में प्रिंसिपल्स नहीं है। 17000 टीचर्स के वैकेंसी है। क्या दिल्ली मॉडल है भाई साहब? एडवर्टाइजिंग, अर्बन एडवर्टाइजमेंट मॉडल है। 2 लाख बच्चे तो पंजाब में 2 महीने में स्कूल छोड़ दिए। ये लोग छोटा मोटा काम नहीं करते हैं। 2 लाख बच्चे जो है, बच्चे स्कूल छोड़ दिए 2 महीने में पंजाब में। दे हैव लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, 2 लाख पीपल। अब नौकरी, अच्छा स्केड्यूल कास्ट के बच्चे के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे विदेश जाएंगे। पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, मैं उसको दिखाना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत ही विचित्र है। आप गवर्नमेंट टू फंड एससी स्टूडेंट्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन अब्रॉड, पूरे अखबार, प्रिंट सब लोग ने छाप दिया, हर एक अखबार में। अभी तक 0/0, कोई भी स्केड्यूल कास्ट बच्चा जो है विदेश नहीं गया। अंबेडकर जी के सपने को पूरा करेंगे, कुछ नहीं हुआ। नॉट अ सिंगल एससी चाइल्ड। जॉब्स, आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 10 लाख नौकरी दिलाए ना। सुन लीजिए, 2017 में मात्र 1 आदमी को सरकारी नौकरी मिला है, बॉस 1। वो उस एक आदमी को हम दिल्ली के भ्रमण के लिए निकले हैं खोजने के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति कौन है। क्या वो दारू बेचने वाला है कि नहीं, कुछ और होगा, क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन होगा। 1 2019 में 268, 2020 में 23 लोग को नौकरी दिया है। बोले कि हम नौकरी 10 लाख दी है प्राइवेट में, और फ्रॉडुलेंट डेटा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज आस्क देम। Roads, no flyover, no road, no flyover, 0. No new road made by the Aam Aadmi Party in Delhi, 0. No new hospital, all Sheila Dixit, 0 hospital, no bed. The Director General of Health Service ने रिपोर्ट में दिया था RTI में कि केजरीवाल has not made a single hospital in Delhi. उद्घाटन सब शीला जी का ही था, 0 हॉस्पिटल, ठीक है। एम्बुलेंस, no ambulance in 8 years for transporting patients. सिर्फ 2 ICU एम्बुलेंस इन्होंने खरीदा। और सुन लीजिए, लेकिन 9 स्क्रैप में डिस्पोज कर दिए। तो पहले दिल्ली में 9 बड़े एम्बुलेंसेस थे जो सुपर स्पेशलिटी वाले एम्बुलेंस होता है ना, केजरीवाल ने स्क्रैप कर दिया और 2 खरीद लिए। तो 9 - 2 7 बचा, -7 हो गया।
ये है दिल्ली की सच्चाई। नौकरी के बारे में बता दिए, एससी के बारे में बता दिए। अब आते हैं हमारे महान भ्रष्टाचारी, कट्टर भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचार के ऊपर। मैं देख रहा था कि गुजरात पुलिस के साथ अरविंद जी बहस कर रहे थे ऑटो वाले के वहां जाने के लिए। कोई भी देखा होगा तो भावुक हो जाएंगे। तो इसकी कहानी सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने 20 करोड़ खर्च किया है अपने सरकारी घर का रेनोवेशन के लिए। 20 करोड़। बड़ा मोदी 500 करोड़। स्विमिंग पूल है अरविंद केजरीवाल के पास। हाँ, उस मकान में स्विमिंग पूल है। तो ये 20 करोड़ का रेनोवेशन, वो पहले ही बड़ा मकान था बॉस, ये तो सिर्फ रेनोवेशन कॉस्ट है। ओनली रेनोवेशन कॉस्ट ऑफ 20 करोड़। स्विमिंग पूल, ऐशो आराम। 20 करोड़ का मकान से वो 2 करोड़ के एक पंजाब सरकार की गाड़ी में बैठते हैं। 2 करोड़ वाली पंजाब सरकार की गाड़ी। फोटो 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 दिखाना जरूरी इसलिए है। ये गाड़ी साहब जो अपनी ऑटो में बैठने के चक्कर में था ना, ये गाड़ी है 2 करोड़ से पंजाब गवर्नमेंट अपने लिए 50 लाख का गाड़ी एमजी ग्लॉस्टर उन्होंने खरीदा जो पीछे रखी है। ठीक है, क्योंकि 50 लाख वाली गाड़ी में अरविंद जी बैठना नहीं चाहते, वो 2 करोड़ वाली गाड़ी में बैठना चाहते हैं। तो 2 करोड़ वाली गाड़ी में बैठ करके पहुंचते हैं दिल्ली के प्राइवेट एयरपोर्ट में। उसमें ये कौन से प्लेन में बैठते हैं? प्लेन में बैठते हैं पंजाब सरकार का 45 लाख वाला हवाई जहाज में। 45 लाख का एक ट्रिप, 1 ट्रिप 45 लाख एक ट्रिप। गुजरात, ये गुजरात आते पंजाब सरकार के नाम पर। पुराना सरकारी अफसर है ना, बहुत खतरनाक लोग होते हैं। अमित चावड़ा साहब अच्छे आदमी है, हम भी अच्छे आदमी है, लेकिन कुछ सरकारी अफसर अगर दिमाग खराब होता है तो बहुत ही खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल इज अ गुड एग्जाम्पल होता है। 45 लाख रुपीज, 45 लाख रुपीज। ओके, फिर आते हैं गुजरात में और 5 स्टार में रुकते हैं प्रेसिडेंशियल स्वीट में, और बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि ऑटो वाले से मिल रहा है। भैया यार, हमको तो गुस्सा आएगा। आप बताओ, अगर इतना प्रेम है ऑटो वाले से तो ऑटो में क्यों नहीं घूमते हो दिल्ली में? और यही केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि हम इसमें चढ़ेंगे, वैगन आर में। याद है वैगन आर ना, ये वाला शपथ ग्रहण में कहते वैगन आर में। ये प्राइवेट प्लेन है बॉस। और मैंने कहा कि अरविंद जी का मुस्कुराते हुए चेहरा प्राइवेट जेट में दिखा देता हूं। देखिए प्राइवेट प्लेन में बैठे हुए साहब, हमारा जैसे थोड़ी इंडिगो का 5:30 बजे का फ्लाइट पकड़ के आना पड़ता है क्या? वो तो कभी भी उड़ जाए। हम लोग को तो एयरपोर्ट 2 घंटा पहले 6 बजे का फ्लाइट था तो 4 बजे पहुंचना पड़ा। लेकिन बड़े साहब की बड़े नखरे हैं। तो ये स्थिति है। और मैं बता रहा हूं कि इन्होंने 1.5 करोड़ का गाड़ी खरीदा आरटीआई। मनीष सिसोदिया ने 1.5 करोड़ का गाड़ी अपने लिए, और मनीष सिसोदिया, आरटीआई का कागज आपको मिल जाएगा, और 50 लाख मनीष सिसोदिया ने खरीदा। लेकिन हम कट्टर ईमानदार हैं। तो मेरा अंत में इतना ही कहना है, बीजेपी आप भाई धोखा दे और खाए मलाई। और ये हमने गाना से शुरू किया था, बाकी सब फर्स्ट क्लास वाला गानी, तो उसका जो लास्ट पंक्ति सुन लीजिए, मजेदार। सच्चाई के मुंह पे ताला है, झूठ का बोला बाला है। अरे इतना घोटाला करते हैं, ये कहते हैं नहीं डरते हैं। रावण की लीला पास है, रावण की लीला पास है। सबको नमस्कार, धन्यवाद। कोई भी सवाल होगा तो आपको जवाब देंगे। आपने ऐसा कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी किया था, और उस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने एक सवाल केजरीवाल को किया था कि अजय कुमार ने ये आरोप लगाया है कि इतने रुपए का है पंजाब सरकार का गुजरात में आया। तब अजय केजरीवाल ने बताया कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जवाब दीजिए पहले। देखिए एक चीज है, मैं बताना चाहूंगा, अहंकार का कोई सीमा नहीं है। पहले तो सर शुरू कीजिए, मैं तो इसका जवाब पार्ट 2 में दूंगा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बट व्हाई हैजंट अरविंद केजरीवाल इसका जवाब क्यों नहीं दिया?
45 लाख की हवाई जहाज, 2 करोड़ की गाड़ी, 20 करोड़ का मकान, जवाब दो। जनता तो जवाब मांग रही है ना कि क्यों नाटक कर रहे हो, क्यों 3-4 हजार करोड़ का जो घपला जो आपने शराब नीति में किया, मैंने तो कर दिया, एक तो वो है। दूसरा, हमारे पास मुझे जो आंकड़े याद हैं, हमारे पास करीब 700 के आसपास विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के पास। आपके पास 150 के आसपास होगा, 180 के आसपास, 750 का कुछ है। बीजेपी के पास 1200 कुछ है, जो मुझे आंकड़े जो अभी याद है अचानक। तो उस पार्टी के बारे में बोल रहा है, उस पार्टी के बारे में लोकसभा में इसकी, यार उत्तराखंड में हमारे 15 सीट पे, तो ये तो बीजेपी की बी टीम इसलिए है कि 15 सीट पर हमारा जो वोट काट करके बीजेपी को जिताया, 0 सबके जमानत जब्त हो गया। आम आदमी से पूछे ना कि इसके जो उत्तराखंड के अध्यक्ष जाकर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, गोवा में जाकर बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, ये बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस विल फिनिश केजरीवाल द डे, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। गुजरात के पत्रकार, देखिए आपने कोविड के समय से लेकर के, मैं तो आपके गुजरात के पत्रकार समूह को जो सलाम करना चाहता हूं, सचमुच में गुजरात के लोग जिस तरह से जो है सच्चाई को, देखिए कोई भी पॉलिटिकल लीनिंग्स हो, लेकिन आप लोग हमेशा लड़ते रहे, सच दिखाते रहे। हम भी गलत करेंगे तो हमारा भी दिखाएंगे। Arvind Kejriwal has to be exposed as one of the biggest liars and most important, one of the most corrupt party in the shortest period of time. मैं बता रहा हूं, इट इज, यू लुक एट इट, 400, किसी भी अभी तक 300 रुपए का प्रदेश का राजस्व पर बॉटल को प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया। आई मीन, मोदी जी देते हैं अपने दोस्त लोग को भी, ये भी अपने दोस्त लोग को ज्यादा, अभी तो शुरुआत किया, तो सोच लीजिए क्या होगा इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर केजरीवाल हैज टू लर्न दैट द कांग्रेस पार्टी हैज फुटप्रिंट्स अक्रॉस इंडिया। वी हैव MLAs which are 7-8 times more than him. We will continue to, we have fought for principles, and I will tell you the last difference between us and Arvind Kejriwal. You ask him what is his view on RSS. Ask him what is his view on scheduled caste. Ask him what is his view on tribals. Ask him. Ask him what is his view on reservation. Ask him what is his view on Hathras Day. He has no view. He is a creation. His views are the most casteist person we have ever seen. And I'm telling you full responsibility. You must ask him what is his view on reservation. Please ask him. Sir, please answer in English. सर माफ कीजिए, नहीं आपकी गलती नहीं है। पहला सवाल है कि अरविंद केजरीवाल से पूछिएगा कि उसको आरक्षण के ऊपर उसके क्या विचार है। बिल्किस बानो में सबको जो रिहाई हुई थी उस पर क्या विचार है। हाथरस में जो लड़की की जो बलात्कार अनुसूचित जाति की बच्ची की हुई थी उसका क्या विचार है। अभी 2 दलित बच्ची को जो है टांग करके मार दिया यूपी में, उसके बारे में क्या विचार है। कोई विचार नहीं। पूछिए, पहले पूछिए कि क्या विचारधारा है, क्योंकि बाकी सब चीज जो है ना, कोई भी सरकारी पदाधिकारी 2-3 क्लासरूम बना देगा। पॉलिटिक्स इज अबाउट बिलीफ, विचारधारा। तो अनुसूचित जाति पर क्या विचारधारा है, आरक्षण पर क्या विचारधारा है, इकोनॉमिक सरकार पॉलिसीज क्या होने चाहिए उस पर बताइए। तो विचारधारा तो इंपॉर्टेंट है सर, नहीं तो आपको 2 करोड़ वाले गाड़ी वाले आदमी बैठ करके जो ऑटो में बैठने के लिए जो नाटक करने वाला, दिल्ली में ऑटो में नहीं बैठेगा, गुजरात में गांधीनगर में आकर ऑटो में इतना बैठने का इच्छुक है कि हमको भी जो है खराब लगता है यार। हम भी ऑटो बेच देते, जगदीश भाई और हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग एक ऑटो खरीद के दे देते हैं, 2 करोड़ वाली गाड़ी हम लोग को दे दो। और कोई सवाल सर? अहमदाबाद में कल एक निर्माण हो रही थैंक यू सर माइक हाँ सर ગઈકાલે હા ગઈકાલે
સવારમાં જ મીડિયામાં ચાલતું હતું. મનીષભાઈને મેં ફોન કર્યો. ભાઈ મનીષભાઈએ મને બધી ડિટેલ મોકલીને લગભગ 11:30-12 વાગે અમારા અસંગઠિત જે સંગઠન છે એના અશોક પંજાબી, ભીખુભાઈ દવે, વિરોધ પક્ષના નેતા કોર્પોરેશનના શહેજાદભાઈ, નીરવ બક્ષી અને બધાને સાઇટની મુલાકાત લેવાનું કહ્યું. હોસ્પિટલમાં જે લોકો સારવાર લઈ રહ્યા હતા એ લોકોને મળવાનું કહ્યું. ડેડ બોડી જેમની હતી એમના પરિવારોની સાથે વાર્તાલાપ કરી અને શું મદદ જોઈએ છે એ ચર્ચા કરી. મને ખૂબ કહેતા દુઃખ થાય છે કે ડેડ બોડી જ્યારે વીએસ હોસ્પિટલમાં આવી ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની કોર્પોરેશન અને સરકાર તરફથી એવી સૂચના આપવામાં આવી કે કોઈ મીડિયાના મિત્રોને પણ વીએસ હોસ્પિટલની જે ડેડ બોડી પડી તે ત્યાં જવાની મંજૂરી નહોતા આપતા. અમારા કોર્પોરેટર વિરોધ પક્ષના નેતાએ ખૂબ માથાકૂટ કરીને એ કર્યા પછી અમને જવાની મંજૂરી આપી. ગઈકાલે રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી ફરિયાદ નહોતી લીધી એવા સમાચાર છે. રાત્રે 9-10 વાગે અમે તપાસ કરી, કોઈ સંતોષકારક પ્રત્યુત્તર નથી મળ્યો. જે વિસ્તારમાંથી આ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા ત્યાં અમારા સંગઠનના આગેવાનોને કરીને એના વાલી વારસોનો સંપર્ક કર્યો. એ લોકો ડેડ બોડી લેવા માટે એમના આગેવાનોને લઈ અને રાત્રે આવી રહ્યા હતા. જે ડેડ બોડી મોકલવાની થાય, એમ્બ્યુલન્સમાં મોકલવાની થાય, પ્રાઇવેટ વ્હીકલમાં મોકલવાની થાય, તમામ વ્યવસ્થા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસે કરવાનું કહ્યું હતું. અને એ રીતે આખા કાર્યક્રમને, આખો જે પ્રસંગ હતો, જે દુઃખદ પ્રસંગ હતો, એ આખા પ્રસંગમાં કોંગ્રેસ 11-12 વાગ્યાથી માંડીને રાતના 9 વાગ્યા સુધી એક્ટિવ હતી. આજે અમે તપાસ કરીશું અને એમાં કોન્ટ્રાક્ટર ઉપર FIR થઈ છે એટલું વર્તમાન પત્રમાં જોવા મળ્યું છે. માનવ વધનો ગુનો જે દાખલ થવો જોઈએ બિલ્ડર્સ ઉપર એ થયો નથી. વારંવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીના મિત્રોને બચાવવા માટે નાના લોકોને ગુનેગાર બનાવી દે છે અને મોટા લોકોને છોડી દે છે. જે અસંગઠિત કામદારો માટેના કાયદા બન્યા એનો પણ અમલ નથી થતો ને મોતના મોઢામાં ધકેલે છે. આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને 12:30 વાગે આગેવાનોને બોલાવ્યા છે અને નહીં થાય તો આ મુદ્દે પોલીસ સ્ટેશન, જે યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન છે, એની સામે ધરણાનો પણ કાર્યક્રમ 4 વાગ્યાથી ચાલુ કરીશું. આવા બનાવો જ્યાં જ્યાં પણ બનશે ત્યાં કોંગ્રેસનું સંગઠન ખડે પગે રહેશે અને મૃતકો હોય અથવા જે અસરકર્તાઓ હોય એના માટેની જે વ્યવસ્થાઓ સરકારે કરવી પડે, જે વેપારીઓએ કરવી પડે, ન કરે તો પણ કોંગ્રેસ આ વ્યવસ્થાઓ કરશે અને દુઃખી લોકોની સાથે, અસરકર્તા લોકોની સાથે કોંગ્રેસ હરહંમેશ રહેશે. થેન્ક યુ. ધારાસભ્યો પાસેથી એવું કોઈ ગેરંટી પત્ર લેવા માંગો છો? ગઈ વખતે બી આવું આપણે ગેરંટી પત્ર લીધું હતું, એ છતાંય ધારાસભ્યો તૂટીને લાલચ કે જે કંઈ હોય એમાં બીજી પાર્ટીમાં જતા રહે છે. તો આ વખતે એવી કોઈ રણનીતિ તમારી છે? અને સેકન્ડ થિંગ, ડોક્ટર અજય કુમાર, I have the one cases regarding about the policies of liquor. आप जो बता रहे हैं कि 233 में से 1 रुपया दिया और जो वेट था 100 रुपीज, उसमें तो 190 रुपीज दिया. तो व्हाट अबाउट द करंट रेट ऑफ द 750 ml beer? That is it the cheaper than before या what? उसको पहले सर जवाब, हाँ, पहले सर आप जवाब दें. पहले सर जवाब दें. पहले सर जवाब दें. આપે જે વાત કરી, સવાલ જે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો ભારતીય જનતા પાર્ટી લઈ જાય છે અને બ્લેમ આવે છે કોંગ્રેસ તૂટી રહી છે. આ દેશની રાજનીતિ અને લોકશાહીને ભારતીય જનતા પાર્ટી ખતમ કરી રહી છે. સવાલો કેમ ઉભા નથી થતા? ચૂંટણીની વ્યવસ્થા કેમ છે? ધારાસભા, લોકસભા, પંચાયત, આ બધું કેમ છે? અને જે પ્રજા દ્વારા પરિણામ આવે
એ પરિણામ આવ્યા પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં માન્ય નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા પછી આ ખરીદ પરોસની રાજનીતિ, આ ડરાવા ધમકાવાની રાજનીતિ જે ઊભી થઈ છે એ આખા દેશ ઉપર ખતરનાક છે કે નહીં, સવાલ ત્યાં ઉભા થાય છે. નહીં, તમારા સવાલ એ જ હું તમને કહું છું. તમે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની વાત તો બાજુએ મૂકો, એક રિક્ષાવાળાને ધમકી. ગુજરાતમાં માત્ર બે પાર્ટીના વચ્ચે ઇલેક્શન લડાતું, એ તમે વર્ષોથી જાણો છો. વર્ષોની રાજનીતિ ગુજરાતમાં કોઈ ત્રીજી પાર્ટી છે જ નહીં અત્યાર સુધી. આપણે માત્ર કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો કેમ તૂટે છે અને તૂટે નહીં તેના માટે તમારી આ વખતની રણનીતિ શું છે? રણનીતિમાં કોંગ્રેસના આજે 64 ધારાસભ્યો આજે અકબંધ છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો તૂટી રહ્યા છે, જઈ રહ્યા છે, આ છે વર્ષોથી ચાલે છે. અને જે ગયા છે એનો કોઈક ઇન્ટરવ્યુ લો ને કે તમે કેમ ગયા છો. કુંવરજી બાવળિયાનો તમને નહીં, એનો જવાબ એ જ છે કે આના માટેનું કોઈ લેખિત લેવાનું ના હોય, એના માટેના કોઈ બોન્ડ લેવાના ના હોય, એના માટેની કોઈ એફિડેવિટ હોય જ ના શકે. જગદીશભાઈ, કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો લોભ લાલચને વશ કેમ થઈ જાય છે? એવા કેમ તમે ઉમેદવાર કેમ નહીં, ભારતીય જનતા પાર્ટીની ધાક ધમકીની રાજનીતિ એક રિક્ષાવાળાથી ચાલુ થઈ અને કોંગ્રેસના શીર્ષ નેતૃત્વ સુધી ધમકીઓ ચાલે. રાહુલજીનો પ્રોગ્રામ હોય તો એ મંડપવાળાને કે 9 કરોડનું બિલ છે, જો કામ કરીશ તો નહીં આપીએ. કોર્પોરેશનમાં ઓનલાઈન 5 લાખ રૂપિયા ભરીએ અને છતાં એમ કે તમારી જગ્યા કેન્સલ કરી નાખીશું. જે ટ્રાફિકના પાર્કિંગના પોઈન્ટ નક્કી થયા હોય એ આગળના દિવસે ટ્રાફિકના પાર્કિંગના પોઈન્ટ કેન્સલ થઈ જાય. આખી લોકશાહી વ્યવસ્થાને ભારતીય જનતા પાર્ટી ધ્વંસ કરી રહી છે, ખતમ કરી રહી છે. બંધારણીય અધિકારો જે તમે જોયું 2 દિવસ પહેલા, રિટાયર આર્મી મેન એને મળવા નથી આવવા દેતા. એકનું મૃત્યુ થઈ જાય છે, માણસ શહીદ થઈ જાય છે. એના આઈજી સગા હોય કે એનો પોલીસ પરિવાર, તમે બધા તાજના સાક્ષી છો. એનો એક દીકરો પોલીસમાં છે, 4 પીઆઈ એને ઘેરીને ફરી વળે છે, એને કોઈને મળવા નથી દેતા, એની આંખમાંથી આંસુ નથી પડતું. આ ટાઈપનો ટેરર ભારતીય જનતા પાર્ટી કેમ કરી રહી છે? સત્તા બચાવવા માટે. અને સત્તા જો આમ જ એને બચાવવાની હોય તો પાપનો ઘડો ગમે ત્યારે પણ ભરાય છે ને ફૂટે છે. આ પાપનો ઘડો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભરાઈ રહ્યો છે. મુદ્દાઓ એ ઉભા થવા જોઈએ કે લોકશાહીમાં કોઈને બોલવાનો અધિકાર નહીં, લોકશાહીમાં કોઈને ધરણાનો અધિકાર નહીં, લોકસભામાં કોઈને માગણી મૂકવાનો અધિકાર નહીં. જે આર્મી મેનો સાથે 2 દિવસ પહેલા જે બનાવો બન્યા છે, બધા તાજના સાક્ષી છે. જે કંઈ અત્યારે કાયદાઓ બની રહ્યા છે, કોઈને આવાજ નથી દેવાના, કોઈને વિરોધ પક્ષને એની ભૂમિકા અદા નહીં કરવા દેવાની. 365 દિવસ 24 કલાક 144ની કલમ. આ કેમ બની રહ્યું છે? જગદીશભાઈ, કેસી વેણુગોપાલ એવું કહ્યું હતું કે 15 તારીખ સુધીમાં પહેલી સૂચિ જાહેર થઈ જશે. નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો ઉમેદવારોને. ક્યાં સુધીમાં સૂચિ જાહેર થશે કે દર વખતની જેમ આ વખતે પ્રસિદ્ધ આવી જશે? દર વખતની જેમ નહીં, આ વખતે જે કંઈ ડેટ અમે આપી છે એ ડેટની આજુબાજુ અમારું જે સિલેક્શનનું કામ ચાલી રહ્યું છે. અને જે રીતે અમે તારીખો નક્કી કરી હતી, 12 તારીખ અને 15 તારીખ બાયોડેટા લેવાની, એ તારીખો એ કેલેન્ડર પ્રોગ્રામ મુજબ કોંગ્રેસ ચાલી રહી છે અને એ મુજબ આગળ વધી રહી છે. 15 તારીખ સુધીમાં બાયોડેટા છેલ્લા પ્રદેશ સમિતિમાં આવી જશે. પછી વિધાનસભા વાઇઝ કેટલા માગણીદારો છે એની બધાની વિગત 15મી સાંજ સુધીમાં મળી જશે. અત્યારે હું આંકડા નહીં કહી શકું. આવવાના બાયોડેટા બાકી છે. અડધા આંકડા આપું, અડધા નહીં આપું, એના કરતા કોઈ આંકડા નહીં આપી શકું. 15 તારીખ અમારી છેલ્લી છે અને 15 તારીખ પૂરી થયા પછી જે કઈ દાવેદારો જે વિધાનસભામાંથી આવશે એની વિગતો આપી શકીશું. તારીખો નક્કી કરી છે મુજબ આગળ વધી ગયા છે. जो लास्ट में जो आपने पूछा, देखिए ये दारू सस्ता हुआ कि नहीं, आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मत समझ लीजिएगा कि हम सिर्फ दारू की दुकान में जाकर दाम पता लगा रहे हैं. लेकिन मैं बताऊंगा ये खेल क्या है.
अगर 500 रुपए का बोतल है और पहले 300 रुपए टैक्स था, तो 200 रुपए कंपनी को। अब हमने टैक्स हटा दिया, कंपनी ने 200 रुपए की जगह पर 485 रुपए बेचना शुरू कर दिया। 500 से सस्ता कौन, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ, टैक्स कम हो गया। तो ये इतने झूठे हैं, हमने दारू सस्ता किया। यार आप देख लीजिए ना, मैंने बोला ना, पुराना सरकारी अफसर अगर भ्रष्ट होता है तो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी होता है। आप देख लीजिए खेल। अब आपको बोल रहे कि सस्ता कर दिया, सस्ता क्या किया? 500 रुपए से टैक्स अगर 300 रुपए अगर कम कर दोगे तो कंपनी ने क्या किया, पब्लिक को 5 रुपए थोड़ा सस्ता दे देता हूं। सो 495 रुपीज चीपर देन 500। बट टैक्स जो सरकार के पास जो आना था वो 300 कम हो गया। और अगर आप टैक्स कम करते हो तो क्या गांधी जी के पद पर चल रहे हो क्या? दारू वाले को जो है इतना मुनाफा दे रहे हो तो आप भगत सिंह जी का पोस्टर लगा करके बेशरम जैसे भाषण देते हो। तो हमारा इतना ही कहना है। और गुजरात कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को ऑटो देने के लिए तैयार है, दिल्ली में नहीं। सर, आपने अच्छा एक बताया कि पॉलिटिक्स ऑल अबाउट विचारधारा। तो आम आदमी पार्टी की वैसे कोई विचारधारा नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं जी। बिना विचारधारा के वो दिल्ली और पंजाब जीत चुके हैं लुक्रेटिव प्रॉमिसेस के जरिए। वही लुक्रेटिव प्रॉमिसेस वो गुजरात में दे रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जो भी वो प्रॉब्लम जो है कंट्री में और गुजरात में, जो आप कह सकते हैं कि बीजेपी की देन है कि बेरोजगार है या जॉब्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बीजेपी है वो प्रॉब्लम क्रिएट करके और वो उनका सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए इस बीच में पॉलिटिक्स ये भी होता है कि चुनाव जीतना। तो ये दोनों के बीच में कांग्रेस का क्या फिर रोल रहेगा? क्या फिर आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी है या इलेक्शन भी जीतने हैं? देखिए एक चीज है, मैंने कहा कि देश के सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अगर असेंबली के दृष्टिकोण से भी देखेंगे, फॉरगेट लोकसभा, पिछले गुजरात में पिछले 20 साल 25 साल के ऊपर, देश में पिछले 9 साल से एक अजीब राजनीति चल रही है, सच्चाई। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम कांग्रेसी ने जो है देश को जो है अंग्रेजों के जमाने से लेकर के 2014 तक हमने देखा पॉलिटिक्स है, पार्ट ऑफ लाइफ है। इस देश के इतिहास में 9 साल काफी लंबे होते हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना देश के भविष्य। हम लड़ेंगे और आप निश्चिंत रहिए, भारत जोड़ो यात्रा एक छोटा सा पहल है। बट मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर 90,000 1 लाख लोग साथ में चल रहे हैं ना, तो कुछ तो हो रहा है देश में। और मुझे पूरा विश्वास है गुजरात में जगदीश जी के नेतृत्व में अशोक गहलोत जी और अधिक परिपक्व कर रहे हैं, आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन पब्लिक से भी हम एक अनुरोध जरूर करेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकल और आंटी, जैसे आपके एक मशहूर पत्रकार बोलते हैं, देश, ये दुनिया के सबसे बेरोजगार लोग इस देश में हैं आज के लिए। सबसे कुपोषित बच्चे दुनिया में मोदी जी के वर्तमान समय में, सबसे ज्यादा अनीमिया के पेशेंट यहां पर, सबसे ज्यादा गरीबी मोदी जी के समय दुनिया में, सबसे ज्यादा अंतर जो है, अगर आपके पास 25,000 रुपए है महीने में, तो आप देश के सबसे अमीर 10% हैं। I'll repeat it. If you have 25,000 rupees per month, you're the 10% richest people in India. ठीक है? आप बाकी 90% का क्या स्थिति आप समझ लीजिए। ये भारत है, ये विश्व गुरु बनाने वाला भाजपा, ये ढोंगी आम आदमी वाली पार्टी। हमारी लड़ाई उसकी है, चुनाव जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता कभी कभी दिग्भ्रमित हो सकती है, हम जनता को कोई दोष नहीं दे रहे। हमको अपना संवाद और मजबूती से डालने की आवश्यकता है, यह हम मानते हैं।
हम में जो है हो सकता है कि हमको अपना कुछ जो है और एग्रेसिव होना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए कि कांग्रेस ही एक सरकार थी, हमने राज 70 साल किया, एक साल बीच में कुछ इतिहास में आप लोग जानते हैं, लेकिन हमने इस तरह का जो है ना अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को दबाया नहीं, ईडी सीबीआई से लेकर के। अभी दिगंबर कामत जी ने बोला था ना कि गॉड नहीं था बॉस, ईडी था। दिगंबर कामत जी जो गोवा में है वो उनके लिए गॉड ईडी है और माइकल लोग हो गए गॉड ईडी है, ईडी गॉड हो गया है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, हमको मेहनत करना है क्योंकि देश बचा है और करेंगे। थैंक यू। થેન્ક યુ. તાજેતરમાં જે રીતે બીજેપી સાથેનું ગઠબંધન જોવા મળ્યું છે અને રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાએ મીટિંગ પણ બંધ પાડીને કરી છે, બીટીપી એવું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે કે અમે જે આદિવાસી સીટો છે ત્યાં આગળ અમારા કેન્ડિડેટ ઉભા રાખીશું. કોંગ્રેસ તો ત્યાં આગળ પોતાના કેન્ડિડેટ ઉભા રાખશે કે એના બાયોડેટાઓ મંગાવ્યા છે કે કોંગ્રેસ ચૂંટણીની રણનીતિઓ નક્કી કરતી હોય છે, એની ચર્ચા પત્રકાર જગતમાં નથી. થેન્ક યુ. थैंक यू।